Good morning, everyone. Today, I, Mrs. Nikki Shweta, is back with the new lesson of your textbook. It's lesson number 2, Is Matter Around Us Pure, Part 1. See, students, before this lesson, I have covered 3 lessons. Actually, we have covered 3 lessons in the science till the time. So, these 3 lessons are lesson number 1, Matter in Our Surrounding, lesson number 8, Motion, and lesson number 5, Fundamental Unit of Life. So, these 3 lessons we have covered. Today we are going to start with the new lesson. It's lesson number 2, Is Matter Around Us Pure, Part 1. So what is this lesson is about? This lesson is about the matter and its different form which is present around ourselves, and how can we separate these forms, what are the differences between these forms. Actually, that part we have to cover in this lesson. This lesson is also from the chemistry of the part of science. साइंस के केमिस्ट्री से ये लेसन है. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. You should be enthusiastic and active while study. So let's start with the lesson first. Okay. So here I have created a flow chart for yourself to understand the idea of the lesson. And this part, whichever part I have shown here, that part I am going to take today. So here we have matter. Basically, in lesson number 1, you have an idea about what is the matter. So what we have studied, matter, anything which is present around ourselves, that we called as matter. Matter is classified into 2 different parts, pure substance and the mixtures. Mixtures are considered as the impure substance. Impure means यहाँ पे गंदा वाला impure नहीं है. Pure और impure का यहाँ पे मतलब पूरी तरह से कुछ अलग है. It is in the form of chemical thing. It is pure and impure. What is the meaning of pure substance here? Pure means the substances which is made up of only one type of particles. जो भी substance एक ही जगह जैसी चीजों से बना होगा. As for example, I will give you the example of a piece of coal. If you are going to divide it into particles, that time you can see that all the particles of that coal is nothing else, it is coal only. In the same way, if we are seeing the water का एक drop of water पिलोगे तो वो H2O ही होता है. So this is the meaning of pure substance here. So pure substances are divided into elements and the compounds. Later in this lesson, you will understand about the meaning of elements and compounds. Next is mixtures. Mixtures are the impure substance. What is the meaning of impure here? Impure means which is the mixture of various type of substances. Here we can divide mixtures into 2 classes, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous means कैसा? एक जैसा mixture. Some mixture which is all over alike, that we called it as homogeneous mixture. Whereas heterogeneous mixture means जो कि कहीं पे कुछ और जैसा होगा, कहीं पे कुछ और जैसा होगा, वो हेटेरो एक जैसा नहीं होगा. इट इज नॉट लाइक अलाइक. सो दैट इज द हेटेरोजीनस मिक्सचर. एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू कोलॉइड एंड सस्पेंशन, whereas homogeneous mixture is solution. See here, this is the whole idea of the today's part which we are going to study today. So आपको क्या क्या पढ़ना है? Matter is divided into 2 classes, pure substances and the impure one. Pure में 2 टाइप है, compound and element. Mixtures भी 2 तरह के होते हैं, homogeneous mixture and heterogeneous mixture.
हेट्रोजीनस मिक्सचर में फिर से दो टाइप पढ़नी है आपको, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। कोलॉइड और सस्पेंशन क्या होता है इस लेसन में आगे आपको तुरंत ही क्लैरिटी आ जाएगी। होमोजीनस मिक्सचर इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वर्ड आपने सुन रखा है, बट इन दिस लेसन द टर्म सॉल्यूशन आपको अलग अलग तरह से समझाए जाएंगे। सो दिस इज द होल टोटल आइडिया। वन मोर थिंग इज हियर, प्योर सब्सटेंसेस कांट बी केमिकली डिकम्पोज्ड। आप अलग अलग करने की कोशिश करोगे, मिक्सचर्स को अलग करना बहुत आसान होता है, वेयरएज जो ये प्योर सब्सटेंस है इनको अलग अलग करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। So first of all we are going towards mixtures. Substances which are made up of two or more matters and which can be separated by physical methods are known as mixtures. आपको एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल दे रही हूँ मिक्सचर का। आपका बहुत फेवरेट आइटम है, जैसे फरसान वगैरह होता है या भेल बनाते हैं खाने के लिए, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स ओनली। कैसे भेल में आप थोड़ा सा शेंगदाना ऐड करते हो, थोड़े मुड़मुड़े होते हैं, थोड़ा फरसान का अमाउंट होता है, और ये अमाउंट आप अपने मन से कम और ज़्यादा कर सकते हो। मान लो मुझे फरसान खाना ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा डाला, किसी को वो कम पसंद है तो वो कम डालेगा। आप चाहे तो उसमें से फरसान को, मिक्सचर्स को अलग अलग भी कर सकते हो। सो मिक्सचर्स आर समथिंग लाइक दैट। केमिकल टर्म में भी मिक्सचर्स ऐसे ही होते हैं। यू कैन सेपरेट देम इजिली। वो रैंडमली किसी भी कॉम्पोजिशन के होते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है। आप कभी अगर भेल अलग अलग दुकान पे खा रहे हो या किसी ने आपके घर पे बनाया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसमें हर कुछ एकदम से सेम अमाउंट में यूज हो। So mixtures are separated by physical methods. Here we have given the example of mixtures of salt and water, mixture of sugar and water, mixture of different gases, air, etc. Very common example of mixture is air. I'll give you the example. If you know the constituents of air, आपको पता होगा एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। So these all are the components of air. And if somewhere these gases are present in some amount, but if the pollution is more, then the amount of carbon dioxide may be more. और मान लो कहीं पे पोल्यूशन बहुत कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। सो द components of air can varies. So it is the amount, it is the type of mixture. Again the mixture of sugar and water. आप शरबत पीने के लिए चीनी और पानी का मिक्सचर बनाते हो, ठीक है। एंड व्हेन यू मिक्स इट, मान लो किसी दिन, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप शरबत बनाने के लिए नाप के उसमें चीनी डाल रहे हो, कभी वो ज्यादा हो सकता है, कभी वो कम हो सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट डील्स अबाउट दैट ओनली। इन अ मिक्सचर components डू नॉट combine केमिकली or through any chemical changes. In a mixture component do not lose their properties. जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको मिक्सचर का। मैंने चीनी और पानी को मिला दिया। चीनी और पानी को अगर आप टेस्ट करोगे तो वो मीठा ही लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि शुगर जब मिक्सचर में बन जाएगा तो वो कुछ अलग टेस्ट करने लगेगा। अगर सॉल्ट और वाटर को आपने मिक्स किया है तो भी वो एक तरह का वैसा ही आपको टेस्ट देगा, नमकीन ही पानी लगेगा, ये नहीं कि वो कुछ अलग टेस्ट देने लगेगा। सो इन द मिक्सचर्स द कॉम्पोनेंट क्या, जिसने मिक्सचर बनाने में पार्ट लिया है। जैसे अगर शुगर और वाटर है उसका मिक्सचर बनाया, सॉल्ट एंड वाटर है उसका मिक्सचर बनाया, एयर अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है, तो दीज कॉम्पोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी भी उसमें रहती है। जैसे कि इफ आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ एयर, एयर में अलग अलग पार्ट है। जैसे ऑक्सीजन का काम है ब्रीदिंग में हेल्प करना, सो ऑक्सीजन उसके लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि वो एयर में आ गया तो वो कुछ और काम करने लगेगा। सो हियर इन द मिक्सचर्स they are not chemically combined.
केमिकली कंबाइन होने का क्या एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं कि अगर इफ आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देन कैसा, अगर वाटर बन गया, वाटर बना तो कैसे बना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ आर गैसेस, लेकिन जब वो वाटर बना देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं हुई, पूरा तरह से एक नया सब्सटेंस बना। whereas in the mixtures the new substance is not formed, it is just the mixture, सब कुछ मिला दिया, बस ऐसा ही होता है mixture. So here I have given you the idea about the mixtures. The next part is about the two types of mixtures, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. होमोजीनस में आप अगर फिगर में देख रहे होंगे तो एक जैसा कॉम्पोजिशन है पूरे मिक्सचर का, येलो डॉट्स हैं और वाइट डॉट्स हैं, दे आर इन द होमोजीनस टाइप, एक जैसा अरेंजमेंट है। वेयर एज इन द हेट्रोजीनस मिक्सचर यू कैन सी दैट कहीं पे रेड है, कहीं पे येलो का अमाउंट ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, कहीं पे वाइट है। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। अगर मैं भेल का एग्जाम्पल दूं तो भेल इज द टाइप ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर है, सब कुछ अलग अलग है और दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट्स ऑल्सो। सो होमोजीनस मिक्सचर एंड द हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, these are the two different types of mixtures. But in this lesson we have to study more about the mixtures. So there are three different type of mixtures which we are going to deal with in this lesson, and these three different types of mixtures are totally new to you. आपको उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, वो टाइप्स आप आज ठीक से उनके बारे में स्टडी कर पाओगे, ठीक है। So here given about the mixtures of homogeneous and heterogeneous mixtures. Mixtures which have uniform means क्या है, एक जैसा composition throughout, पूरा। अगर मैं चीनी और पानी को मिला दूं तो आप अगर उसको पियोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने पहला घूंट लिया तो उसमें वो ज्यादा मीठा लग रहा है और आप फिर जैसे जैसे नीचे का पानी पियोगे तो वो ज्यादा मीठा लग रहा है, अगर आपने चीनी ठीक से घोला है तो, या नमक और पानी। So these all are the examples of the homogeneous mixture, whereas heterogeneous mixtures do not have uniform. Uniform का मतलब यहाँ पहनने वाला यूनिफॉर्म नहीं है। This uniform means it is alike, एक जैसा, uniform composition throughout. As for example, mixture of soil and sand, mixture of sulfur and iron fillings, mixture of oil and water. These mixtures are not alike. अगर मैं ऑयल और वाटर को मिलाऊं, आपको पता है कि ऑयल और वाटर को आप मिलाओगे तो ऑयल जो है वो ऊपर ही रह जाएगा सरफेस पे और नीचे वो नहीं, कम जाएगा। सो ये एक जैसा नहीं हुआ ना, ऊपर ऑयल का अमाउंट ज्यादा, नीचे ऑयल का अमाउंट कम। सो दिस इज द टाइप ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर विच वी आर डीलिंग। मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड सैंड, मिट्टी और रेत को आप मिला दो, वो भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग, लोहे का फाइलिंग्स, लोहे के एकदम बारीक टुकड़े भी नहीं कह सकते, पाउडर्ड फॉर्म में लोहा, आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर इज अ येलो पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर जैसा एक सल्फर का पाउडर होता है, ठीक है। सल्फर कहाँ यूज कर सकते हैं, सल्फर मेडिसिन वगैरह में यूज होता है। सो सल्फर और आयरन, लोहे के फिलिंग्स को जब आप मिलाओगे तो इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक द हेट्रोजीनस मिक्सचर। सो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट होमोजीनस मिक्सचर एंड द हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। नाउ वी हैव टू मूव टू द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स विच इज द मेन पार्ट ऑफ दिस लेसन। इसमें आपको 3 टाइप्स पढ़ाऊंगी मैं। सोल्यूशन आप पढ़ोगे, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। कौन कौन से 3 पार्ट्स, सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। सो फर्स्ट वी आर गोइंग थ्रू द सोल्यूशन। In a solution there are 2 types of component, one is called solute and other is called solvent. आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ शुगर और वाटर का।
चीनी और पानी आप मिक्स करते हो, ठीक है, क्या कम अमाउंट में होता है उसमें? चीनी 2-3 चम्मच होती है, जबकि पानी आप कितना लेते हो? 1 ग्लास भर के लेते हो, ठीक है। तो शुगर और पानी में सॉल्यूट कौन सा है? शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। एक को आप घोल रहे हो, किसमें घुलेगा? वो होगा आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा होगा? जिसको आप घोल रहे हो। और सॉल्वेंट को क्या होगा? जिसमें आप उसको मिक्स कर रहे हो। एक पार्ट है जिसको आपको मिक्स करना है और दूसरा पार्ट क्या है? जिसमें आप उसको मिक्स करने वाले हो। एज फॉर एग्जाम्पल, इन द solution of water and sugar is solute and water is solvent. In the same way, salt और water अगर है तो salt is the solute and water is the solvent. Here, solute substances which is present in smaller quantity in a mixture is called solute. Of course, जैसा मैंने आपको बताया कि शुगर और वाटर अगर आप ले रहे हो तो शुगर कम होगा, वाटर ज्यादा होगा। सॉल्ट और वाटर होगा तो क्या होगा? सॉल्ट कम होगा, वाटर ज्यादा होगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूट। कौन सा हो गया उसमें से? जो कम है। कौन कम है? शुगर एंड सॉल्ट बोथ आर प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी, सो दे आर द सॉल्यूट। नाउ मूविंग टू द सॉल्वेंट। सब्सटेंसेस in a mixture which is present in larger quantity is called solvent. As for example, water, आप चीनी और नमक को चीनी और पानी को मिला रहे हो तो चीनी हो गया तुम्हारा सॉल्यूट और वाटर हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट। सी, वाटर ही हमेशा सॉल्वेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर डिफरेंट सॉल्वेंट्स ऑल्सो, जैसे एल्कोहल होता है, एसीटोन होता है, ये भी सॉल्वेंट है। हर बार ऐसा नहीं कि मैं वाटर बोलूं तो वाटर ही है। एग्जाम्पल, इन द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी while water is present in larger quantity. Here salt is solute and water is solvent. आपको अभी मैंने बताया। So solution means क्या? एक मिक्सचर जिसके 2 पार्ट होते हैं, solute और solvent। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो हो गया सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो हो गया सॉल्वेंट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जस्ट नाउ आई हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट होमोजेनस मिक्सचर। एक जैसा मिक्सचर जो होगा दैट वी कॉल्ड एज होमोजेनस मिक्सचर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन, सो सोल्यूशन वाटर और शुगर, सो इट इज द टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन आर मिक्स्ड इवनली थ्रू आउट। पूरे सोल्यूशन में एक जैसा मिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि चीनी और पानी को घोल रहे हो तो अपर पोर्शन में चीनी ज्यादा, मिडिल पोर्शन में उससे कम और उससे नीचे उससे कम, ऐसा नहीं। इवन पूरा एक जैसा घुलेगा वो। The size of particles of solution is smaller than 1 nanometer. Solute cannot be separated by using filtration. अगर आपको चीनी और पानी के शरबत को अलग करना है तो अगर आप फिल्टर करोगे या छन्नी से छानोगे तो वो फिल्टर होके चीनी अलग और पानी अलग नहीं होगा। Solutions are stable since when left undisturbed the particles do not settle in bottom. आपको अगर चीनी और पानी को घोल बना के आपने छोड़ दिया, एकदम अच्छा घोल, हाँ, उसमें चीनी बचना नहीं चाहिए, और उसको मैं अनडिस्टर्ब छोड़ दूं, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, उसको नहीं हिलाऊं, तो क्या ऐसा होगा कि चीनी नीचे सेटल डाउन हो जाएगा? नहीं होगा ऐसा। सॉल्ट और वाटर के साथ भी आप करोगे तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दोगे, अनडिस्टर्ब मीन्स क्या? उसको हिलाना नहीं है। ऐसा नहीं कि वापस से जाके चम्मच से आप हिलाओ। इफ यू आर कीपिंग इट अनडिस्टर्ब, ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट पार्टिकल्स जो है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। सो इट इज नॉट लाइक दैट। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन। ऐसा सारे सोल्यूशंस के साथ होता है। सोल्यूशंस का आपको एक एग्जाम्पल दिया मैंने। ये जो ब्लू पार्टिकल्स आप देख रहे हो ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4, और सॉल्वेंट की तरह वो सोल्यूट है, और सॉल्वेंट की तरह हमने क्या लिया है? पानी को। मतलब आप
कॉपर सल्फेट को पानी में घोल के सोल्यूशन बनाने वाले हो. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इट फॉर्म्स योर सोल्यूशन. इन दोनों का सोल्यूशन देखो आप, एक ब्लू कलर का सब्सटेंस बना है. अगर मैं इसको फिल्टर करूंगी, फिल्टर होके ये सोल्यूट अलग नहीं होगा. अगर मैं इसको अनडिस्टर्ब छोड़ूंगी तो ऐसा नहीं कि वो सोल्यूट के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ सोल्यूशन. सॉल्यूशंस दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेट मतलब क्या हुआ, इंग्लिश मीनिंग आपका जो भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गया. जैसे आप बोलते हो ना, पढ़ते पढ़ते अभी मैं सैचुरेट हो गया, मतलब अभी आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो यह सोल्यूशन के टर्म में सैचुरेट और अनसैचुरेट का मतलब क्या होगा. फर्स्ट आई एम डिस्क्राइबिंग यू. सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स क्या, अगर मैं पानी ले लूं एक ग्लास और उसमें चीनी डाल रही हूँ, ठीक है, मैंने 2 चम्मच चीनी डाला, 3 डाला, 4 डाला, ऐसे मैं शुगर ऐड करती जा रही हूँ. एक टाइम ऐसा आएगा जबकि उसमें शुगर आगे ऐड होना बंद हो जाएगा. एट दैट पॉइंट दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड. मतलब अभी वो सैचुरेट हो गया, अब वो आगे कुछ भी नहीं ले रहा है. सो सैचुरेटेड. जैसे आप पढ़ते पढ़ते सैचुरेट होते हो, आगे अभी कुछ नहीं ले सकते. इसका मतलब क्या कि अब आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अब नहीं समझ सकता हूँ, सैचुरेट हो गया हूँ मैं. सो इन द सेम वे सॉल्यूशंस आर आल्सो गेटिंग सैचुरेटेड. मतलब आप सोल्यूट को ऐड कर रहे हो, इतना ऐड कर रहे हो, इतना ऐड कर रहे हो कि वो आगे अभी और ऐड नहीं हो पाएगा. सो दैट टाइम दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन. और जबकि अनसैचुरेटेड क्या, आप सोल्यूट मिक्स कर रहे हो, मतलब शुगर और पानी को मिक्स कर रहे हो या सॉल्ट और पानी को मिक्स कर रहे हो, तो जब तक वो उसमें मिक्स होता रहेगा तो वो अनसैचुरेटेड है. सो दिस इज द 2 टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की मीनिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है. So after understanding the meaning of saturated and unsaturated solution, here one term which is concentration of a solution. मतलब आपका सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, उसका परसेंटेज जब आप निकालते हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. मान लो जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि मैंने 100 ml ऑफ वाटर लिया और उसमें मैंने 100 ml ऑफ वाटर लिया और उसमें मैंने 5 ग्राम ऑफ शुगर को डिसॉल्व किया. तो इसी का परसेंटेज जब आप निकालोगे, दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन. Here I have shown you 2 formulas. Concentration, mass of solute. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैंने 5 ग्राम ऑफ शुगर लिया है एंड मास ऑफ सोल्यूशन 5 ग्राम शुगर लिया है और जो सोल्यूशन बनाया है तुम्हारा वो मान लो कुछ आपका 20 ग्राम या 30 ग्राम बना है, उसका जब परसेंटेज आप निकालोगे दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन. फिर से देखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट मतलब जितना भी आप अगर कोई सोल्यूशन बना रहे हो तो मान लो कितना भी उसमें शुगर या सॉल्ट आपने ऐड किया है, दैट इज द मास. उसका जो भी आप 5 ग्राम है, 2 ग्राम है, देन द मास ऑफ सोल्यूशन आपने उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया. देन व्हाट इज द मास, मान लो वो 20 ग्राम बना, 30 ग्राम बना, तो दैट इज द मास ऑफ सोल्यूशन and it is multiplied by 100. This formula is given in your textbook also, and I think so one problem is also given. You try to solve that problem, otherwise I'll help you while solving that problem. Then the concentration is again here, volume of solute, volume of solution multiplied by 100. मान लो मैंने कोई लिक्विड और लिक्विड को ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम 20 ml मान लो आपने कोई ऑयल लिया और उसको 30 ml पानी में मिक्स किया, तो वैसा अगर है तो उसके लिए भी कॉन्सेंट्रेशन. सो हियर 2 formulas I have shown you about the concentration of the
सोल्यूशन, कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हो किसी भी सोल्यूशन का। नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर, पहला टाइप का मिक्सचर हमने क्या पढ़ लिया, सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना था, है ना। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, एक फटाफट रीकैप ले लेंगे। यहाँ इस लेसन में क्या पढ़ रहे थे, मैटर के बारे में, मैटर प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में आपको यहाँ पे अभी मैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, वेयर एज इन द इम्प्योर पार्ट मिक्सचर्स आर देयर, and here we are studying about the different type of mixtures. मिक्सचर्स में आपको मैंने बताया कि होमोजीनस मिक्सचर होते हैं जो एक जैसे होते हैं, और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं जो कि पूरे मिक्सचर एक जैसे नहीं होते। मिक्सचर के मैंने आपको कॉमन एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे कि भेल इज द एग्जाम्पल, आपका खाने वाला भेल इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, एंड एयर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। Then we have to study about 3 different type of mixtures: solution, suspension and colloid. So till the time we have finished about the solution. Solution क्या होता है, जैसे कि कोई भी सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स करते हो और वो इवन मिक्सचर बनता है, एक जैसा पूरा, that we called as solution. Now the next type of mixture is suspension. सस्पेंशन अभी क्या है वो देखेंगे, लेकिन आपको एक कॉमन बात बताती हूँ। सस्पेंशन मतलब अगर कॉमनली आपको समझना है, मिट्टी और पानी को आप मिलाओ, ठीक है, या रेत और पानी को, बालू होती है ना, उसको, सैंड और वाटर, उसको आप मिक्स करो, क्या वो मिक्स होता है? मिट्टी और पानी को आप मिक्स करोगे तो आप देखोगे वो पूरा एक जैसा मिक्स नहीं हुआ। अगर आप उसको थोड़ी देर बिना हिलाए हुए ऐसे ही पानी को अगर रख दोगे तो मिट्टी पूरा तली में बैठ जाता है, वो सेटल डाउन हो जाता है। चॉक का पाउडर और पानी को मिक्स करो, क्या होगा, वो मिल्की आपको दिखेगा, व्हाइट कलर का सोल्यूशन बनेगा, लेकिन व्हेन यू लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब वो चॉक के पार्टिकल्स जो है नीचे सस्पेंड हो जाएंगे, जबकि सोल्यूशन में ऐसा नहीं हो रहा था। सोल्यूशन में शुगर और वाटर को अगर आप मिला के रख दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि शुगर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, वेयर एज इन द केस ऑफ सोल्यूशन ऐसा होता है। सस्पेंशन जो होता है वो पूरा एक जैसा नहीं होता, इट इज नॉट होमोजीनस नेचर, इट इज जस्ट हेट्रोजीनस, एक जैसा नहीं होगा। मिट्टी कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम हो सकता है, इट इज नॉट इवन, एक जैसा मिक्सचर नहीं बनता है। सो वी आर गोइंग थ्रू द सस्पेंशन. Suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. See, many terms are here. Solute का मतलब अभी आपको पता है, अगर मैं मिट्टी और पानी को मिक्स करूं तो क्या solute होगा, मिट्टी, soil is the solute. तो solute जो है वो पूरे तरह से डिसॉल्व नहीं होगा, पानी में मिलेगा नहीं। रिमेन सस्पेंडेड, सस्पेंड मीन्स जैसे कि वो मिट्टी के पार्टिकल्स जो हैं पानी में हर जगह पे प्रेजेंट होंगे। इन द बल्क ऑफ द मीडियम, वो जो मीडियम है मतलब कि पानी के अंदर वो जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आईज, हमारी आंखों से भी वो पार्टिकल्स दिखेंगे। जबकि आप चीनी और पानी को अगर जब मिला दोगे तो अगर मैं बोलूं कि चीनी तुम्हें नजर आ रहा है तो आप बोलोगे नहीं ये तो नजर नहीं आ रहा है मुझे। जबकि मिट्टी और पानी को आप मिक्स करोगे तो मिट्टी के पार्टिकल्स आपको पानी के अंदर दिखेंगे। इन द सेम वे अगर सैंड और वाटर को आप मिक्स करोगे यू कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सैंड। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द सोल्यूशन एंड द सस्पेंशन। ये पार्टिकल्स जो है बड़े होते हैं तो आपको दिख जाते हैं आपकी नेकेड आईज से भी। Properties of a suspension. Suspension is a heterogeneous mixture. The particles of suspension can be seen by the naked eyes. The particle of suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. ये जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट एक फेनोमेना से मैं तुम्हें क्लियर करूंगी।
क्या बोल रहा है कि अगर आपने मान लो मिट्टी और पानी या सैंड और वाटर को मिक्स किया है, ठीक है, और उसको कांच से बने एक बर्तन में लो, मतलब ग्लास में, ठीक है, और आप उससे पानी लाइट को पास करो, एक टॉर्च ले लीजिए और रूम को अंधेरा कर लो और मिट्टी और पानी से मिक्स आप उसको लो और टॉर्च उसमें जला के देखो, वो जो पार्टिकल्स हैं आपको दिखेंगे और लाइट जो है वो उससे स्कैटर होता है। सी दिस फेनोमेना इज सीन जब आप रात में कभी बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं और ठंड का सीजन होता है। ठंड के सीजन में क्या होता है, फॉग होता है एटमॉस्फेयर में ना, ऐसे थोड़े से क्लाउडी मौसम होता है, तभी आप देखोगे कि आपके गाड़ी की हेडलाइट जो है उसकी लाइट स्कैटर होती है, एकदम से फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। सो दैट इज ड्यू टू द सस्पेंशन ओनली। The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed, that is suspension is unstable. मैंने बताया कि मिट्टी और पानी को आप मिक्स करोगे और उसको जब अनडिस्टर्ब रहने दोगे, वैसे ही बिना हिलाए डुलाए वैसे ही रख दोगे, तो उसमें से मिट्टी जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। सो दैट मीन्स सस्पेंशन इज अनस्टेबल इन नेचर। They can be separated from the mixture by the process of filtration. अगर आप छन्नी से कोई बहुत सीव जिसे मम्मी अनाज वगैरह को क्लीन करती है, अगर मिट्टी और पानी को उससे छानेंगे तो मिट्टी ऊपर रह जाएगा और पानी छन के नीचे चला जाएगा। सो वी कैन सेपरेट देम ऑल्सो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन हियर। द थर्ड वन, कोलॉइडल सोल्यूशन। सी कोलॉइडल सोल्यूशन आपने देखा है लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कोलॉइडल सोल्यूशन है। ये अभी 3 टाइप आपको पढ़ना था, कौन कौन सा? सोल्यूशन पढ़ लिया आपने, सस्पेंशन पढ़ लिया, एंड थर्ड टाइप ऑफ मिक्सचर इज द कोलॉइडल सोल्यूशन। अभी कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है? A colloidal solution, occasionally identified as the colloidal suspension, is a mixture in which a substance is regularly suspended in a fluid. A colloid is a minutely small material that is regularly spread out all through another substance. जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मिल्क। आपके घर पे भी मिल्क आता है। मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। आप जब मिल्क को किसी बर्तन में रखते हैं, आपको लगता है वो पूरा एक जैसा मिक्सचर है, उसमें आपको पार्टिकल्स भी नहीं दिखते हैं। आपको मिल्क में कभी कोई पार्टिकल दिखा है? वो पानी जैसा दिखता है, वाइट कलर का। बट एक्चुअली इन द मिल्क इट इज द टाइप ऑफ मिक्सचर। मिल्क के अंदर वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं। सो मिल्क इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। ऐसा नहीं है कि मिल्क एक जैसा कोई सब्सटेंस है, लेकिन मिल्क में पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं कि यू कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आईज। आपको आपकी खुली आंखों से वो पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं। सो मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कोलॉइडल सोल्यूशन। मैं और दूसरे एग्जाम्पल देती हूँ आपको कोलॉइडल सोल्यूशन का। एग होता है, अंडा। अंडे में व्हाइट और येलो पोर्शन होता है। आप कभी उस व्हाइट पोर्शन को पानी में डिसॉल्व करके देखो, ठीक है, पानी में मिला दो। पानी में जब आप उस व्हाइट पोर्शन को मिलाओगे तो वो एक क्लाउडी मीन्स की ट्रांसपेरेंट नहीं, पानी ट्रांसपेरेंट होता है। अंडे को और उस पानी को मिक्स करोगे तो वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहेगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, ऐसा सोल्यूशन बनके मिलेगा तुमको, लेकिन उसमें कोई पार्टिकल नहीं दिखेंगे आपको। सो अगेन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कोलॉइडल सोल्यूशन। तो 3 तरह पढ़े तुमने। सोल्यूशन था, सोल्यूशन में पार्टिकल्स थे, आपने मिला दिए, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सस्पेंशन में आप मिट्टी और पानी को मिक्स कर रहे थे लेकिन वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था। कोलॉइडल में मिल्क है, इट इज अगेन द टाइप ऑफ मिक्सचर, लेकिन आपको पार्टिकल्स उसमें दिख नहीं रहे हैं, बट दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन में यहां से वहां वो पार्टिकल्स हैं, बट यू कैन नॉट सी दैट पार्टिकल्स बिकॉज दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज।
छोटी साइज के पार्टिकल है, आपको दिख नहीं रहे, बट दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट देयर. अगेन हियर, इफ इन द केस ऑफ कोलॉइड यू वांट टू फिल्टर इट, यू कैन नॉट फिल्टर. अगर आप मिल्क को फिल्टर करोगे, पूरा का पूरा मिल्क फिल्टर हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि फैट अलग होगा, पानी अलग होगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा. ऐसा प्रोसेस नहीं होता है मिल्क में. जबकि सस्पेंशन में आपने फिल्टर किया था तो सस्पेंशन फिल्टर हो गया था, है ना, जबकि कोलॉइड को आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं. अगेन वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड. कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर. सारा दूध एक जैसा नहीं होता है. आप देखोगे मिल्क इज ऑल्सो हेट्रोजीनस इन नेचर. द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू सीन बाय द नेकेड आईज. खुली आंखों से आपको पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, बट द पार्टिकल्स आर देयर. Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and makes it path visible. जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सस्पेंशन में से अगर आप टॉर्च जला के आप एक बार करो ऐसा, कांच के ग्लास में मिल्क को ले लो और रूम अंधेरा करके टॉर्च जलाओ उस पे, आप देखेंगे कि लाइट जो पास हो रही है उस ग्लास से, वो लाइट एकदम फैल के स्कैटर्ड पास हो रही है, स्प्रेड पास हो रही है, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इन कोलॉइड. आपकी खुली आंखों से वो पार्टिकल आपको नहीं दिख रहे हैं, बट वेन यू आर पासिंग द लाइट these particles are visible. They do not settle down when left undisturbed. That is, a colloid is quite stable. आप मिल्क को अगर अनडिस्टर्ब छोड़ते हो, ग्लास में भर के ऐसे ही मिल्क को रखा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो मिल्क के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे. मिल्क मिल्क जैसा ही रहेगा. They cannot be separated by the process of filtration. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप अलग अलग नहीं कर सकते हो मिल्क को. The components of colloidal solutions are in the dispersed phase and the dispersion medium. जैसे solute और solvent होता है, वैसे ही colloid में dispersed phase और dispersion medium होता है. Dispersed phase means क्या? जैसे solute था तुम्हारा चीनी, वो dispersed phase हो गया यहाँ पे, और जैसे पानी था dispersion medium, वो यहाँ पे हो गया आपका colloid में dispersion medium. solute और solvent, जैसे सॉल्यूशन बनाने में दो पार्ट थे ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो कोलॉइड बनाने में भी दो पार्ट हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम. मैं आपको एग्जांपल देती हूं. डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आपके घर में अंधेरा है पूरा और एक छोटा सा स्मॉल ओपनिंग खुली हुई है और उधर से लाइट आ रही है, ठीक है. When you see that light, कभी कभी आपको उसमें डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, ऐसे उड़ते हुए आते हैं, आपने देखा होगा कभी. ये एकदम पूरा घर अंधेरा है और एक छोटा सा ऐसे होल जैसा है और उसमें से लाइट आ रही है. यू कैन सी द डस्ट पार्टिकल्स देयर. तो एयर में वो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है ना, वो उड़ते हुए दिखेंगे आपको. तो डस्ट पार्टिकल्स क्या हो गए? डिस्पर्स्ड फेज हो गए, और एयर क्या हो गया? डिस्पर्सन मीडियम हो गया वहां पे, है ना. एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, सो डस्ट पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड फेज एंड द एयर इज द डिस्पर्सन मीडियम. Here I have mentioned also the solute like components are dispersed phase and the solvent like portion is the dispersing medium. Here I have given you some of the examples of colloid. In your textbook this type of table is present there. कुछ कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं कोलॉइड के, यहाँ पे आपको दिया है, जैसे कि मिल्क. मिल्क में लिक्विड और लिक्विड एक दूसरे से मिला हुआ होता है. मिल्क में लिक्विड एंड लिक्विड एक दूसरे से मिला हुआ होता है. फैट होता है एंड वाटर होता है. मड, आप देखो सॉलिड और लिक्विड का कोलॉइड है. मड मीन्स कीचड़ बन जाता है जो. जेली आपने खाया है, जेली, चॉकलेट जेली वगैरह होते हैं. लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होता है. फॉग, क्लाउड, मिस्ट. क्लाउड में क्या होता है? वाटर वेपर एयर में रहता है, सो इट इज लिक्विड इन गैस, है ना. और शेविंग क्रीम जो होता है, फोम वाले शेविंग क्रीम आते हैं, उसमें भी गैस और लिक्विड होता है. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड.
आपको उसमें पार्टिकल्स दिख नहीं रहे हैं, आप उसको फिल्टर कर नहीं सक रहे हो, लेकिन दे आर प्रेजेंट, दे आर द टाइप ऑफ मिक्सचर्स. Here I will show you one of the effect which is called as Tyndall effect. क्या है Tyndall effect? The phenomena of scattering of light by the particles of solution is called Tyndall effect. Example, scattering of light by fog or canopy of tree. जंगल में आप गए, बहुत सारे पेड़ों का झुंड है, उसमें से लाइट नीचे आ रही है, आप फिर से उस लाइट को देखो, वहां पे आपको डस्ट पार्टिकल उस लाइट में तैरते हुए नजर आएंगे. या मैंने क्या बताया आपको, फॉग. क्या बोला आपको मैंने अभी बताया था कि जैसे आप ठंड का सीजन है और आप बाहर जा रहे हो, तो आप देखोगे आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें से लाइट एकदम से स्प्रेड दिखती है. क्यों? एटमॉस्फेयर में फॉग होता है. See, in Pune it is not that much winter season कि fog वगैरह ज्यादा हो, लेकिन wherever the temperature is very down, the fog is very common there. और फिर आपको यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखाया है, तीनों टाइप ऑफ मिक्सचर लिया मैंने. सोल्यूशन लिया है, कोलॉइड लिया है और सस्पेंशन लिया है. लाइट पास हो रही है तो कोलॉइड और सस्पेंशन से जो लाइट है वो स्कैटर हो रही है. So that is the example of the Tyndall effect. कोलॉइडल सोल्यूशन से और सस्पेंशन से लाइट स्कैटर होती है and this phenomena we called it as Tyndall effect. नॉर्मल चीनी पानी आप मिक्स कर दोगे, नमक पानी मिक्स करोगे, उससे लाइट स्कैटर नहीं होगी. It is scattered by the colloidal solution only and by the suspension only. So first of all we'll take a quick recap of the lesson which we have studied right now. Then in the next of my video I'll cover the rest of the topics which is the separating techniques. अभी मिक्सचर तुमने बना लिया तो मिक्सचर को सेपरेट करने की टेक्निक्स भी होनी चाहिए, but we are not going to study it right now today. Today we'll just recap the lesson. Lesson number 2 is matter around us pure. So pure substances are compounds and the elements. Impure substances mixture. In the mixture we have studied 3 types: solution, colloid and suspension. Solution में मैंने आपको बताया कि जैसे चीनी और पानी को आप मिक्स कर दोगे तो वो एक solution है. मिल्क आपको मैंने बताया, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड एंड देयर आर डिफरेंट कोलॉइड्स ऑल्सो. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग वाइट और पानी को आप मिक्स कर दोगे तो वो भी कोलॉइड है. एंड वन मोर एग्जाम्पल आई हैव गिवन ऑफ सस्पेंशन ऑल्सो. सस्पेंशन में मिट्टी और पानी को आपने मिक्स किया तो वो सस्पेंशन बन गया है ना. सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो नहीं फिल्टर होगा, उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा. कोलॉइड को फिल्टर करोगे कुछ भी नहीं निकलेगा, जबकि सस्पेंशन को फिल्टर करेंगे तो मिट्टी और पानी को आप अलग अलग कर पाओगे. सॉल्यूशन में आपको पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं आपकी आंखों से, कोलॉइड में भी आपको पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं आपकी आंखों से, जबकि सस्पेंशन में यू कैन सी द पार्टिकल्स फ्रॉम योर नेकेड आईज ऑल्सो. नाउ फ्रॉम योर एंड आई वॉन्ट दैट यू रीड द लेसन. There are many points which is covered in the lesson. Today I have covered most of that point. If any point is missing, you let me know, I'll cover that also. But first of all, you read the lesson properly. I have cleared you the idea about the lesson and most of the things I have given you here in this lesson. And the Tyndall effect also, it is the phenomena of scattering of light by the particles of solution. So this all topic I have covered today. So by the time you take rest, but not too much, you study hard also, because study is the part which is very important in your life. You have to study hard. Teachers are there for you. And you be healthy and happy at your home. Take care of yourself and your family. We'll meet in the next video of mine of this lesson only, in the part 2 of this lesson. Bye.